Good morning, students. A very warm welcome to today's class. How are you all? कैसे हो आप सब? So, beginning today's class, as we all know that in yesterday's class हम ये जो chapter कर रहे थे, this is Jodie's fawn. तो इसके हमने दो parts complete किए थे and today we will be doing the remaining third part of the chapter and we'll complete the chapter with it. Okay. So, without wasting any time, we will start with the text. See, now part 3. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." Now, when he was searching for the fawn, now what happens? The movement directly in front of him, it startled him so that कि वो suddenly क्या हुआ? He tumbled back. वो एकदम से पीछे हो गया. फॉन ने अपना फेस ऊपर लिफ्ट अप किया. उसने अपना फेस टर्न किया विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक किया हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज लिक्विड आईज. आंसुओं से भरी हुई उसकी आंखें थी एंड इट वाज क्विवरिंग. वो शेक कर रहा था स्लाइटली एंड उसने कोई एफर्ट नहीं किया वहां से खड़े होके भागने का. जॉर्डी नहीं ट्रस्ट कर पा रहा था हिमसेल्फ टू मूव कि वो वहां से मूव करे. ही विस्पर्ड, "इट्स मी." उसने बोला, "ये मैं हूँ." फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, सेंटेड हिम. फॉन ने अपनी नोज ऊपर की, उसको थोड़ा सा खुद सूंघा उसने. एनिमल्स जो होते हैं उसमें बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो उसने उसको स्मेल किया. He reached out one hand and laid it on the soft neck. उसने अपना एक हाथ उस तक बढ़ाया और उसने उसको क्या किया, पूरा उसको प्यार से उसको छुआ. ठीक है, सॉफ्ट नेक पे उसको थोड़ा सा हैंड रब किया अपना. द टच मेड हिम डेलीरियस. और ये जो टच था ना, उसने उसको एक्सट्रीमली एक्साइटेड कर दिया. He moved forward on all fours until he was close beside it. And वो जब तक उसके बिल्कुल पास नहीं गया ना, वो अपने चारों टांगों के ऊपर मूव करता रहा. He put his arm around its body. उसने अपना हाथ उसके अराउंड, उसकी बॉडी के अराउंड ऐसा पूरा कवर किया. A light convulsion passed over it. एक लाइट सा कन्वर्जन था. It passed over it, but it did not still. लेकिन वो बहुत स्टिर नहीं हुआ, बस हल्का सा शिवर हुआ. वी कैन से ऐसा बिल्कुल मूव नहीं हुआ वो. He stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. वो इतना प्यार से उसको इतना जेंटली उसकी साइड्स को स्ट्रोक कर रहा था कि जैसे कि वो एक चाइना डियर हो और कहीं कस के हाथ लगा दिया तो कहीं वो ब्रेक ना हो जाए. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, वो बहुत स्लीक था, दैट इज बहुत स्मूथ था, बहुत शाइनी था एंड उसके अंदर एक ग्रास के अंदर वो छुपा हुआ था ना, तो उसके अंदर एक बहुत स्वीट सा सेंट था ग्रास का. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. वो खड़ा हुआ और उसने फॉन को वहां से ग्राउंड से लिफ्ट अप किया. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. आपने देखा है, आप जब भी कोई देखोगे डेयर या गोट जैसा कोई एनिमल को जब हम पिक करते हैं तो उनकी जो लेग्स होती हैं वो कैसे लिम्पली हंग करती रहती है, वैसे यहाँ था. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. उसकी लेग्स जो थी वो सरप्राइजिंगली बहुत लंबी थी और उसे जैसे तैसे उसको पुल अप करना था जितना हायर वो कर सके अंडर हिज आर्म. He was afraid that it might kick and bleat at the sight and the smell of its mother. He striked the clearing and pushed his way to the thickest. It was difficult to fight through with his burden. Fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield his face from prickling vines. Its head bobbled with his strides. His head thumped with the marvel of acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn on its dangling legs. It wavered on them, it looked at him and bleated. अब हुआ क्या, वो बहुत अफ्रेड था. वो इस डर से बहुत, इस चीज से बहुत डरा हुआ था that it might kick. जैसे ही वो अगर अपनी मदर को देखता या उनकी स्मेल आती उसको, तो उसको डर था कि वो किक करके उसको भाग जाएगा एंड वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा. तो उसने क्या किया, बहुत ही स्कर्टेड द क्लियरिंग. वो जैसे तैसे दौड़ता हुआ उस एरिया को क्लियर करते हुए निकला एंड पुशिंग हिज वे इनटू द थिकेस्ट.
बहुत डिफिकल्ट था उसको फोन के बर्डन के साथ में उस जगह से निकलना। फोन की लेग्स जो थी वो बुशेस में फंस गई एंड वो उस अपनी भी वहां से नहीं कर पा रहा था, कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। एंड उसने अपने फेस को शील्ड करने की कोशिश की, उसके फोन के भी, बिकॉज वहां पे जो वाइन्स, जो ट्रीज थे, जो प्लांट्स थे, वो बहुत ही कैसे थे, प्रिक्की थे, प्रिक्की मतलब कांटे वाले थे, झाड़ियों जैसे थे। एंड उसका हेड जो था इट बॉब्ड विद स्ट्राइड्स। एंड सडनली व्हाट हैपेंड, हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, कि उसको ऐसा लगा कि नहीं कोई बात नहीं, अब इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, नाउ ही इज विद मी एंड वो अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। सो ही रीच्ड द ट्रेल, so he reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home and he stopped, और वो वहां पे रुका to rest and set the phone down। उन्होंने रेस्ट किया, फोन को नीचे रखा ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, हिलती डुगली जो उसकी लेग्स थी उसके ऊपर, एंड इट वेवर्ड ऑन देम, और उसके ऊपर वो बेचारा वेव करता खड़ा रहा। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, वो फोन ने उसकी जॉडी की तरफ देखा और वो वहां से ब्लीट करने लगा। ओके, सो ही सेड एन्चांटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माय ब्रेथ। अब उसको लगा कि वो बेबी जो था ना, वो छोटा सा फोन, वो बेचारा इस वजह से ब्लीड कर रहा था कि डोंट लीव मी हियर, मुझे यहाँ पे छोड़ो मत। तो ही सेड एन्चांटेड, मतलब उसने उसको बोला डोंट वरी आई विल कैरी यू, एक बार मुझे सांस लेने दो, देन अगेन आई विल कैरी यू, मैं यहाँ छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फोन वुड फॉलो इफ इट हैड बीन कैरिड। He started away slowly. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with joy. He wanted to fondle it. Now he says उसे अपने फादर की बात याद आई। What does his father said? His father said कि अगर आपने फर्स्ट कभी फोन को कैरी करके मूव किया हो ना, तो वो स्लोली स्लोली फिर जब आप उसको नीचे छोड़ दोगे और आप मूव करोगे तो वो आपके पीछे आएगा। सो व्हाट ही डिड, वो धीरे से उसके पास गया फोन की तरफ, फिर मूव किया तो फोन ने भी मूव करना शुरू किया उसके पीछे। फिर वो वापस गया, उसको फिर से उसके पास गया, फिर वापस आगे मूव किया तो ही वॉकड अवे अगेन। तो ऐसे करके उसने कुछ वॉबलिंग से स्टेप्स जो थे लिए उसने टुवर्ड्स हिम, एंड वो बहुत ही पिटियसली रोया, क्योंकि उसका मन था बट वो विलिंग था बट वो नहीं चल पा रहा था ना, तो दैट इज व्हाई ही क्राइड कि प्लीज मुझे उठा लो। सो इट वाज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम एंड इट वाज हिज ओन, ये उसका खुद का अपना था। ठीक है, so that is why he was light-headed with joy. He was unable to think clearly with joy, and he wanted to fondle it, to run and romp with it. वो उसके साथ दौड़ना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। To call it to him, to come to him, वो उसको अपने पास बुलाना चाहता था। He dared not alarm it, और उसने उसको बिल्कुल नहीं डराया। He picked it up, उसने उसको उठाया and carried it in front of him over his two arms, और अपने ऐसे दोनों हाथों में, जो सामने हम उठा लेते हैं ना गोट या शीप या डियर को, तो उसने उस तरीके से उठाया। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी एफर्ट के उसको उठा करके वॉक कर रहा है। His arms began to ache and he was forced to stop again. अब उसके हाथ दुखने लगे और वो वापस से एक बार रुका। When he walked on, the phone followed him at once. और फिर जब वो वॉक किया ना, तो फोन धीरे धीरे उसके पीछे वॉक किया। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. वो उसको अलाउ करते कि थोड़ा डिस्टेंस वो वॉक करता, फिर थोड़े डिस्टेंस उसको पिकअप कर लेता। The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. Now distance home जो था ना, वो कुछ नहीं था. He could have walked all day. वो पूरे दिन walk कर सकता था, and into the night too, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning. वो wet था, वो गीला था पूरा sweat से, but light breeze जो थी ना, it blew through the June morning, cooling him, cool करते हुए. And the sky was as clear as spring water in a blue china cup. और sky जो था वो बिल्कुल क्लियर था, as spring water in a blue china cup. And he came to the clearing, और वो clearing तक आए. It was fresh and green after the night's rain, और बिल्कुल fresh green था after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. उसने fumble किया with the latch and he was finally obliged, कि वो set down किया उसने phone को to manage it. Then he had an idea, फिर उसको कुछ idea था, he would walk into the house, कि वो house में walk करेगा into Penny's bedroom, Penny के bedroom में, with the phone walking behind, और
फॉन उसके पीछे पीछे वॉक कर रहा है, बट एट द स्टेप्स द फॉन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। बट उसके पीछे पीछे क्या हुआ, फॉन जो थे इट बाग मीन्स इट was unwilling and refused to climb them, और रिफ्यूज हुआ, क्लाइम नहीं किया उसने, एंड ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर पेनी ले विथ क्लोज्ड आईज, एंड उसने पिकअप किया एंड ही वेंट टू हिज फादर, एंड पेनी जो था बिल्कुल क्लोज आईज के साथ में वहीं रहा। जॉडी कॉल्ड पा लुक, जॉडी ने बोला पा लुक हियर। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, द fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were bright as the fawn's. He said, I am glad you found him. नाउ पेनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी उसके पीछे खड़ा था, द फॉन जो था उसने क्लच किया हार्ड अगेंस्ट हिम, और ऐसा लग रहा था इट सीम टू पेनी कि जो बॉय है ना हुज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, एंड ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, वो बहुत खुश हुए। एंड जॉडी देन वेंट टू द किचन, द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, जॉडी किचन गया तो फॉन इसके पीछे पीछे, एंड द पैन ऑफ मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और जो पैन था ना मिल्क से भरा हुआ वो बिल्कुल सेफ था किचन में, द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और उसके ऊपर क्रीम भी आ गई थी। He skimmed the cream into the jug. उसने वो क्रीम को तो जग में निकाल दिया। He poured the milk into a small cart. उसने एक छोटे से बाउल के अंदर वो मिल्क जो था वो पोर किया। He held it out to the fawn. और then उसने वो बाउल जो था वो fawn के सामने रखा। It butted it suddenly. उसने फटाफट से पी लिया। Smelling the milk, मिल्क की खुशबू, he saved it precariously from spilling over the floor. इतने ध्यान से पिया ना उसने, इतना ज्यादा कॉशियसली उसको पिया कि उसने उसको फ्लोर पे बिल्कुल भी स्पिल नहीं होने दिया, फैलने नहीं दिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, और उसने वो मिल्क जो था ना उसमें उससे उसका कुछ नहीं हुआ, उसका पेट भरा ही नहीं। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. And उसने क्या किया, अपने फिंगर को डिप करता मिल्क में और उसको उसके सॉफ्ट वेट सा जो माउथ था उसमें रखता, एंड इट सक्ड ग्रीडीली, एंड वो उसको सक कर लेता बहुत ही ग्रीडीली, जैसे उसकी इच्छा तो बहुत थी। When he withdrew them, जब उसने उसको हटाता, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, जब वो अपनी फिंगर वहां से निकालता ना तो वो जोर जोर से ब्लीट करता, एंड बटेड हिम, और ऐसे उसको काटता कि मुझे और दो। Then he dipped his finger again and the fawn sucked it again, and he lowered them slowly into the milk. और फिर उसने धीरे से उसको वापस उसको lower करता milk के अंदर, and the fawn blew and sucked and snorted. Fawn blew होता, suck होता, snort करता, and it stamped in all hoofs impatiently. And वो अपने चारों जो उसके hoofs थे ना उसके ऊपर stamp करता, उछलता, पैर मारता जोर जोर से, as long as he held his finger below the level of the milk. जब तक वो अपने finger को milk की level पे नीचे रखता ना तो वो fawn जोर जोर से, because he was so excited, वो wait नहीं कर पाता था, because वो बहुत भूखा था ना, that is why he was feeling very greedy and hungry for the milk. And the fawn was content. जब वो सेटिस्फाई हो गया, जब उसका पेट भर गया, इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमीली, तो उसने अपनी आंखों को बहुत ही ड्रीमीली क्लोज किया, एंड इट वाज एन एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, एंड ही सेज कि इतनी प्यारी फीलिंग थी जब उसकी टंग को मैं अपने हैंड के अगेंस्ट फील कर रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्स बैक एंड फोर्थ, एनिमल्स क्या होते हैं अपनी हैप्पीनेस शो करते हैं अपनी टेल को वेव करके, फ्लिक करके, तो ऐसा ही हुआ, वो भी खुशी से अपनी छोटी सी टेल को बैक एंड फोर्थ उसको वो फ्लिक कर रहा था। The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling, and last of the milk जो था वो vanish हुआ in a swirl of foam and gurgling, and finally he drank all the milk and he was very satisfied and he was happy, and along with that Jody भी equally ही उतना ही happy था। तो किसने लिखा है ये? मार्जोरी कैनन रॉलिंग्स, and it was, we know that it was really a very interesting, बहुत इंटरेस्टिंग थी ना स्टोरी। सो ऐसे ही वी शुड ऑल्सो हेल्प हुएवर हैज हेल्प्ड अस। तो यहाँ पे देखो इस बच्चे की जो मदर थी उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया था जस्ट टू सेव जॉडीज फादर, ठीक है। सो उसमें इस बच्चे का क्या दोष था? इसका तो कोई दोष नहीं था ना फॉन का, तो सो व्हाई शुड ही हैव अ सफरिंग लाइफ? तो दैट इज व्हाई जॉडी एंड हिज फादर दोनों के थॉट्स इतने क्लियर थे। दे ब्रॉट द फॉन एंड दे डिसाइडेड दैट हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ही शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन एंड वी विल टेक केयर ऑफ him. Okay, so this way now you go through the text and I hope you will well understand it. So I think everything is well explained to you, and in tomorrow's class we'll be meeting with a new chapter. Till then, this is all for today's class, and just take care of yourself.